Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. Today we are going to complete our unit communication. In this lecture I will try to recapitulate some basic concepts of communication, and first I will repeat what communication means and what's the importance of communication and what's the importance of having a good communication, of having good communication skills that will help and boost your job prospects as well as your career prospects, because communication is very important as far as your studies go, and in the future when you will work somewhere in a particular job. It's very important to have a good communication skills to communicate with the uh, colleagues or with your subordinates. So what communication means, we have read it ample of times that communication means sharing of information, and how well you share that information depends on how good your communication skills are. So in communication generally it means sharing of information in the form of ideas, emotions, thoughts, etc. So basically sharing of information takes place, and you will be able to share information only when you will be able to speak properly. So there are various elements in the process of communication: sender, message, channel, receiver, feedback, and context. We have discussed it in detail: what sender means, what message means, what channel means, receiver means, or feedback. So first we will recapitulate of who is the sender. Sender is the person who initiates the communication process. सेंडर हम उस बंदे को कहते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है. इसको हम इनकोडर भी कहते हैं, जो एक मैसेज इनकोड करता है. जब हम मैसेज कोई ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन place to another, we encode it the best or most effective way that can be sent. All of this is done bearing the receiver in mind. It's his her job to conceptualize. जो सेंड होता है एक मैसेज को कंसेप्चुलाइज करता है, और उसको पता होता है कि जो मेरा टारगेट है, जो रिसीवर है, उसको किस फॉर्म में ये मैसेज पहुंचानी है. Second one is message. A message may be communicated in the form of a letter, in the form of an email, or face to face in the form of a speech. जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी उसको हम एक मैसेज के फॉर्म में हम कम्युनिकेट करते हैं. उसको हम ईमेल थ्रू भी उस इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं. अगर हम फेस टू फेस है तो हम इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है वो मैं एक मैसेज के थ्रू आपको पास ऑन करता हूँ. तो मैसेज हम उस चीज़ को कहते हैं जो एक सेंडर इनकोड करता है, कंसेप्चुलाइज करता है, उसको एक प्रॉपर तरीके से फिर रिसीवर तक पहुँचाता है. So message becomes very important. So we should be able to formulate this message properly so that the receiver is able to understand it in the same way the sender wants him to understand it. Third one is the channel. After हमने मैसेज भी कंसेप्चुलाइज की, उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस चैनल मीन्स किस माध्यम से, किस वे से हम उसको सेंडर तक पहुंचाएंगे. द चैनल इज़ दैट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द चोजन मैसेज. को हम किस फॉर्म में मैसेज को बनाते हैं, फिर हम उसको कैसे डिलीवर करते हैं, वो चैनल पे डिपेंड करता है कि किस चैनल के थ्रू. फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट, रेडियो. मीन चैनल आल्सो मीन्स मीन्स थ्रू विच वी डिलीवर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए मैसेज. हम किस इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम मैसेज को डिलीवर करते हैं टू द रिसीवर. फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस को भी हम पोस्ट के थ्रू करते हैं डिलीवर अपनी मैसेज. इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी मैसेज टाइप करते हैं और रिसीवर को सेंड करते हैं. या रेडियो के थ्रू हम कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है, वो हम रेडियो के थ्रू अपने रिसीवर्स तक पहुंचाते हैं. सो चैनल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेंडर, सेकेंड वन इज़ मैसेज, एंड थर्ड वन इज़ चैनल. जब चैनल डिसाइड की उसके बाद रिसीवर. रिसीवर कौन होता है? द रिसीवर और द डिकोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिकोडिंग मीनिंग फ्रॉम द मैसेज. जब सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया, फिर रिसीवर जो रिसीव करने वाला होता है मैसेज को, वो उसको डिकोड करता है उस मैसेज को. द रिसीवर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द सेंडर. वही रिसीवर जब उस मैसेज को पढ़ता है, रिसीव करता है, उसके बाद उसको फीडबैक देता है वेदर ही और शी अंडरस्टूड दैट मैसेज और नॉट. जो इन्फॉर्मेशन उसको रिसीवर को चाहिए थी, वेदर दैट इन्फॉर्मेशन वॉज इन दैट मैसेज और नॉट. हु डिसाइड्स इट? द रिसीवर डिसाइड्स इट, एंड it's receiver who provides the feedback to the sender. So receiver is very important, and
फीडबैक इज़ द वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। और उसी फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि जो मेरा मैसेज पहुंचाने का जो तरीका था वो सही था या गलत था, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं। And then the feedback, the very essential component of communication is the feedback. This is important as it determines whether or not the decoder grasped the intended meaning and whether communication was successful. ये फीडबैक ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे पूरा कम्युनिकेशन का ये सक्सेस और फेलियर पता चलता है एक सेंडर को, कि जो भी वो चाहता था उस कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना वो अचीव हुआ कि नहीं। ये फीडबैक मगर कौन देता है? द ओनर्स ऑफ द फीडबैक लाइज ऑन द रिसीवर। इट्स रिसीवर हु प्रोवाइड्स द फीडबैक टू द सेंडर वेदर ही अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट, वेदर ही अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेंडर और नॉट। सो फीडबैक इज़ दैट इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल थी या अनसक्सेसफुल रही। और in case it was unsuccessful, then the whole process is again repeated till the receiver understands the message in the form the sender wants him to understand it. Next one is context. Context होता है, contact communication does not take place in vacuum. किसी हम हवा में बातें नहीं करते, हमारा कोई मकसद होता है और उस मकसद को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। हमारा उस मैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस मैसेज में ऐसी क्या चीज़ है, उससे कुछ जो रिसीवर रिसीव करने वाला होता है उसको कोई फ़ायदा पहुंचना चाहिए। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन एक्ट्स इन द एनवायरनमेंट सराउंडिंग इट। दिस इंक्लूड्स अमंग अदर थिंग्स प्लेस, टाइम, इवेंट एंड एटीट्यूड्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत एक पूरा उस कम्युनिकेशन का किसके इर्द गिर्द कम्युनिकेशन रिवॉल्व करती है, वो एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि मेरा इंटेंशन जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन का मकसद होता है और वो इन्फॉर्मेशन किस रिलेटेड है। अभी मैं आपको आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट कम्युनिकेशन इज़। सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई लेक्चर इज़ कम्युनिकेशन, कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्युनिकेशन इज़, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर किसको कहते हैं हम, फीडबैक किसको कहते हैं हम, चैनल किसको कहते हैं हम, रिसीवर किसको कहते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट किसको कहते हैं। ये सारा जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। हम इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके हमारा मकसद यही था कि we try to understand what communication is. So in next chapter we will further